प्रेम आओ आओ इकडे मैंने मैडम बिसू साथ मैम का माइक माइक बंद पड़ा है। हेलो जी मैम। हाँ बेटा, इंटरनेट कनेक्शन की वजह से मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी और कब से ट्राई करी थी, अभी जाके कनेक्ट हुआ है। सो लेट्स जी कंटिन्यू। मैम मौसम गुजर मौसम एड़ो लोगों पे आना मना सडनली हला था उन्हनि कनेक्ट सिग्नल्स वरी अची था वञनि त कनेक्ट थियण में टाइम थो लॻे। Information security policy, a set of rules for the protection and organization information assets. ठीक है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसीज हम क्यों बनाते हैं, वो क्या हम क्या करते हैं, सेट करते हैं कि इनको रूल्स को किस चीज़ के लिए, आपकी प्रोटेक्शन के लिए, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोटेक्शन है, आपके एसेट्स की जो प्रोटेक्शन है, उनके लिए हम क्या करते हैं, सिक्योरिटी पॉलिसीज बनाते हैं। इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसीज, उसमें जनरल सिक्योरिटी पॉलिसीज आ जाती हैं। इशू स्पेसिफिक सिक्योरिटी पॉलिसीज, स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी पॉलिसीज आ जाती हैं उसमें। सिस्टम स्पेसिफिक सिक्योरिटी पॉलिसीज में आपकी कॉन्फ़िगरेशन आ जाती हैं। Support the mission, vision and direction of organization. उसके बाद set the strategic direction, scope and tone for all security efforts. Executive level document drafting by organization chief information officer expresses the security philosophy within the IT environment, guide the development, implementation and the management of security program. Address an organization need to comply with law and regulation into two ways: general compliance and identification, the specific penalties and disciplinary action. Now these are the component of security policies. Statement of purpose, इसमें क्या है, a description में answer the questions. What is the policy for? Provider a framework, provides a framework that help the reader understand the internet, and the document here the sample statement of a purpose. अब statement purpose क्या है, उसमें आपको क्या होना है, आपको क्या बताना है, आपकी पॉलिसी क्या है, उसका सारा फ्रेमवर्क बताना है। जो रीडर है, पढ़ने वाला है, उसको उसका इंटेंस, और इट्स नॉट अ इंटरनेट, इट्स इंटेंट, उसका इंटेंशन हो, उसको वो बात समझ में आए कि एक्चुअली ये जो सिक्योरिटी है या ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये हम जो बना रहे हैं, ये हम फॉलो कैसे करेंगे। दिस डॉक्यूमेंट विल, अब ये हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं इसमें। आइडेंटिफाई द एलिमेंट ऑफ गुड सिक्योरिटी पॉलिसीज, explain the need for the information security, specify the various categories of information security, identify the information security responsibilities and rules. हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि हम सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन किस तरीके की चाहिए और हम उसमें कौन से उसको कौन से उससे काम करवाएं, कौन किस चीज़ को सिक्योर करना है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो हम अपना सिक्योरिटी सिस्टम बना रहे हैं या जो लगा रहे हैं उसका रोल क्या है। उसके बाद है identify the appropriate level of security through the standards and guidelines. The documents establish the overarching security policies and direction for our company, individual department, and expected establish a standard, guideline, and operating procedure that they other to aim reference this policy while addressing their specific and individual need. जाहिर की बात है, अगर एक डिपार्टमेंट हमारे ई कॉमर्स का पूरा बिजनेस चल रहा होता है तो हम स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी तो हर जगह होगी, लेकिन ज़्यादा स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी कहाँ पर लगाएंगे, जहाँ पर हमारा डेटा सेंसिटिव होगा, वहाँ पर हम क्या करेंगे, ज़्यादा सिक्योरिटी लगाएंगे, वहाँ पर हम ज़्यादा सिक्योर करेंगे अपने कस्टमर्स को भी और खुद को भी, अपने एसेट्स को भी।
Information technology security element. Define the information security, for example, protecting the confidential integrity and availability of information while the processing, transmission, and storage through the use of policy, education, training, and technology. This section can also lay out the security definitions or philosophies and clarify the policies. उसके बाद आ जाता है next is need for information technology security. Provide information on the importance of information security in the organization and the obligation, legal and ethical, protect critical information about the customers, employee and market. मार्केट्स अब सिंपल वही बात है कि हमें जो है क्या होता है, हम क्या प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन, जो भी हमारा डेटा जो हमें अपने कस्टमर से, एम्प्लॉय से या मार्केट से मिल रहा है, उसको हम लीगली इथिकली प्रोटेक्ट करें। जो भी हमारा डेटा है, इस तरह की नहीं कि हमारे कस्टमर्स हमें जो अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या हमें मार्केट से इंफॉर्मेशन मिल रही है वो हम लीक करते रहें। Information technology security responsibilities and role. Define the organizational structure designed to support information security. Identify categories to individual with the responsibility for information security. IT department, management, user, and their information security responsibility, including maintenance of the documents. Reference to other information technology standard and guideline. List the other standard that influence and are influenced by the policies document, perhaps including relevant law, just like a federal and state law and their other policies. Address specific areas of technology requires frequent update. Contain the statement on the organization position and on a specific issue. May cover use of company owned network and internet. Use the telecommunication technologies just like a fax and phone. Use electronic mail. आपकी जो email आ जाती है उसकी बात कर रहा है. Specific minimum configuration of computer to define against worms and viruses. आपको configuration लगानी होगी अपने computers पे, अपने computer को worms मतलब ये सारी क्या है, worms and viruses, अपने जो है ना viruses से बचाने के लिए. Prohibition against the hacking और टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी कंट्रोल. आपको क्या हो गया, अपनी कंप्यूटर को हम क्योंकि इशूज मतलब ये इश्यूज है ना, इन चीज़ों से हमें क्या है सिक्योरिटी पॉलिसीज बना के, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर बना के हमें क्या करना है, अपने डेटा को सिक्योर करना है. Home use of company owned computer equipment, use of personal equipment on a company network, उसके बाद use of a photocopy equipment. कंपोनेंट एंड डिस्क्रिप्शन. कंपोनेंट इसमें स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी में आ जाता है स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी, definitions and technology address and responsibilities. The policy should be with the clear statement of a purpose. Second, authorized access and usage. Usage, access, fair and responsible use and protection policy. प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी. ठीक है, अब जाहिर की बात है ऑथोराइज एक्सेस ऑफ द यूसेज, ये चीजें तो होनी चाहिए ना. अब इसमें क्या बोल रहा है, दिस सेक्शन एड्रेस हु कैन यूज द टेक्नोलॉजी governed by the policies and what it can be used for. An organization information system are the exclusive property of the organization and user have no general rights to use. Each technology process is provide for the business operation use for any other purpose of constitute misuse. ठीक है, अब ये बोल रहा है कि टेक्नोलॉजीज जो भी है, आप जो है अगर वो जो उसका जो प्रोसेस है वो बिजनेस ऑपरेशंस के लिए होता है, अगर आप उनको किसी और चीज़ के लिए यूज़ करोगे, मतलब जो अथॉरिटी आपको मिल गई है वो बिजनेस के लिए मिल रही है, तो अगर आप किसी और चीज़ पे उस सॉफ्टवेयर को या उस सिक्योरिटी सिस्टम को यूज़ करोगे तो वो मिसयूज होगा.
ठीक है। प्रोहिबिशन यूजेज, ठीक है, रिस्ट्रिक्टिव यूज और मिसयूज, किसी भी चीज का अगर आप मिसयूज करोगे मतलब ये आपको कंपोनेंट है इस तरह, ये आपको नहीं करना चाहिए। मिसयूज करोगे तो वो ऑलरेडी क्राइम होगा। क्रिमिनल यूज ऑफ ऑफेंसिव एंड हरासिंग materials, copyright license or other intellectual property and other restrictions. Useless scoring. It's unless a particular use of clear prohibited, the organization cannot be penalized the employer for the using that is that deficient. Number fourth is system management. Management of the store material, employer monitoring, virus protected, physical security, and encryption. The section focus on the user relationship to the system management. It's important that all such responsibilities be designed to either the system administrators or user. Otherwise, both parties infer that the responsibility belong in the other party. Okay, violation of policy, procedure of reporting violation and penalties for the violation. This section specifies the penalties for each category of violation is veil instruction on how individuals in the organization can report, observe, and suspected violation, allowing the any submission. Often the only way to convince users to the report the unauthorized activities of other more influential employees. अब जाहिर की बात है violation of policies होगी तो उसमें आपको क्या है उसका प्रोसीजर आपको बताया जाएगा कि आप किस तरीके से उस चीज को रिपोर्ट कर सकते हो या उस पर क्या क्या पेनल्टीज है। अगर ऐसा कोई एम्प्लॉय कर रहा है या ऐसा कोई कर रहा है तो उस पर क्या पेनल्टीज है, किस तरीके से उस चीज को हम सॉल्व कर सकते हैं। Policies review and modification. Schedule review of policies procedure for a modification. It's called modification because the document is only useful if it is up to date. Each policy should contain a procedure and timetable for the periodic review. This section should be specify a methodology for the review of modification of the policy to ensure that the user not being circumventing its grow absolute. Limitation of liability. Statement of liability are discrimination. If the employee is caged conducting the illegal activity with the organization equipment assets, अगर कोई भी employee आपका इस तरीके में पकड़ा जाता है कोई भी illegal act करते हुए तो उसके इक्विपमेंट या एसेट्स के साथ कंपनी के जिस ऑर्गेनाइजेशन आप काम कर सकते हो उसमें अगर कोई एम्प्लॉय सॉरी बेटा एक्चुअली आई एम नॉट वेल दैट्स व्हाई ये डिस्टर्बेंस हो रही है। Management does not want its organization held liable to the policy should state that the organization will not protect employees what violate company policies or any law using the company technologies and the company is not liable for such actions. System specific policy SYSP appear with the managerial guidance expected in policy include a detailed technology specification but not usually found in their type of policies document. Managerial guidance of system specific policies is that guide the implementation and configuration of specific technology. उसमें आपको क्या होगी गाइडेंस मिलेगी कि जो आपकी टेक्नोलॉजीज आपकी हैं वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट की जाए। उसके बाद आ जाता है टेक्नोलॉजिकल सॉरी इट्स नॉट अ टेक्नोलॉजिकल इट्स टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जनरल मेथड इम्प्लीमेंटिंग टेक्निकल कंट्रोल। वो जो मेथड आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो उस पर टेक्निकल कंट्रोल कौन से हैं और किस तरीके से आप उसको यूज कर सकते हो। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट set of specification that identifies the piece of technology authorized user
include detail on the right and privilege those users have on the technology. Access control metrics combine the capability tables and SES configuration rule. उसमें फिर specific instruction entered in the security system to regulate how to react the data it receives. फिर rule based policy आ जाती है, उसमें more specific to a system operation than SELS may or may not deal with the user directly. फिर वो आप पे आ जाता है कि आप डायरेक्ट यूजर से डायरेक्ट कंटेक्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते, ये फिर आप खुद सेट करते हो। जितनी स्ट्रॉन्ग आप पॉलिसी करोगी उतनी फिर क्या आ जाएंगी, रिस्ट्रिक्शंस आती जाएंगी। आपकी सिक्योरिटी सिस्टम होगी तो स्ट्रॉन्ग होगी तो आपका जो यूजर है वो हर चीज में आपसे पूछ के इंटर होगा ना, जिसको आप चाहें इंटर करें, जिसको आप चाहें इंटर ना करें अपने सिस्टम में या अपने सॉफ्टवेयर में या अपनी वेबसाइट पे। Framework and industry standards, security blueprints, basis for the design, selection, and implementation of all security program elements. Security framework आ जाता है, उसमें क्या होता है, आउटलाइन ऑफ द ओवरऑल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्ट्रेटेजीज आ जाती हैं। आप जो भी इंफॉर्मेशन है सिक्योरिटी जो ओवरऑल आपकी जो भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी बनाई गई है उसके बारे में। रोड मैप फॉर the planned change in the organization information security environment, the ISO 27000 series NIST model, ये इसमें आ जाते हैं, सीरीज है उसकी। कंप्यूटर सिक्योरिटी रिसोर्स सेंटर CSRC publication SP 814 generally accepted principle and practices for a securing information security information technology system lists the principle and practices to be used in the development of security blueprint. SP security policies 841 14 का ये 41 है, रेफरेंस या रिव्यू गाइडलाइन ऑन द फायरवॉल्स एंड फायरवॉल पॉलिसीज। फायरवॉल्स के बारे में हम जो है ना पिछले क्लासेस में पिछले लेक्चर्स में पढ़ते हुए आए हैं कि फायरवॉल भी क्या होता है, इट्स अ काइंड ऑफ security system. Provide an overview of the capabilities and technologies of firewall and firewall policies. ठीक है, उसमें फिर आप लिमिटेशन रख देते हो अपने और यूजर के बीच में। SP 853 review the 3 recommendations security control of federal information system and organization, describe the selection implementation of security control for information security to lower possibility successful attack from threat. SP 853A July 2008 guide assessing the security control in federal information system, building effective security assessment plan. फिर उन्होंने क्या किया है, they provide a system development life cycle approach to security assessment in assessment of information system. उन्होंने क्या किया, एक सिस्टम उन्होंने प्रोवाइड की थी सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो अप्रोच की थी, जो सिक्योरिटी असेसमेंट इंफॉर्मेशन को के साथ वर्क करी थी या उसको इम्प्लीमेंट उस पर इम्प्लीमेंट हो रही थी, क्या समझे, उसको चला रही थी। The other NIST perimeter defense publication, defined publications, इसमें क्या आ जाता है, SP 36 guide to selecting, मतलब ये इसके रूल्स हैं। SP मतलब सिक्योरिटी पॉलिसीज। अब 836 में क्या आता है, गाइड करता है ये आपको टू सेलेक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी प्रोडक्ट। फिर जब आप 40 में जाओगे वर्जन में 2.0, ये भी हमने वेब पढ़ी थी, वेब 2.0 हमने पढ़ी थी वेरी फर्स्ट क्लासेस में, अगर आप लोगों को याद होगा तो। क्रिएट अ पैच एंड वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम। देन SP 846 रिव्यू में क्या बोल रहा है, द गाइड द इंटरप्राइज टेलीवर्क एंड रिमोट एक्सेस सिक्योरिटी। उसके बाद जो है SP 847 सिक्योरिटी गाइड फॉर इंटरकनेक्टिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके बारे में ये इसमें रूल्स लिखे हुए होंगे। SP 848 रिव्यू में वो गाइड कर रहा है सिक्योरिटी लेगेंसी
Legacy IEEE 802.11 वायरलेस नेटवर्क, ये फिर इसको सपोर्ट कर रहा है. यूज द कॉमन vulnerabilities and Europe series. ठीक है, उसमें क्या आ जाता है, vulnerability naming scheme आ जाती है. फिर आ जाता है हमारा SP 861 रिव्यू कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट हैंडलिंग गाइड. उसके बाद आ जाता है द नेक्स्ट इज SP 877 गाइड इज IP सेक्शन IP सेकंड एंड VPNs. उसके बाद आ जाता है गाइड द malware incidents prevention and handling. And then next is guide the computer security log management. उसके the next is guide the intrusion detection and prevention system IDPS. ये क्या करता है, उसको गाइड करता है, उसकी गाइडेंस है इसमें. उसके बाद है the next is guide to SSL and VPNs user, and then next is we can say last is user guide to securing external device to the telework and remote access. Best practices of benchmarking and best practices procedure that are expected prescribed as being correct or most effective. The benchmarking is evaluation against the standards. Spares security journalize a foundation of good security framework. The control implemented between system and information, between network and the computer system, and between the internet and the internal network. ये क्या करता है, evaluate करता है किस चीज को, कि वो जो सिक्योरिटी है, वो जो फ्रेमवर्क है, वो जो आपस में काम कर रहा है वो किस तरीके से कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिए हुए हैं. ये इम्प्लीमेंटेड है बिटवीन सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन. आपके सिस्टम और उसमें जो इंफॉर्मेशन आ रही है उससे रिलेटेड जो नेटवर्क है उसको दिखता है. बिटवीन इंटरनेट एंड इंटरनल नेटवर्क. ठीक है, इंटरनेट और इंटरनेट के साथ जो इंटरनल नेटवर्क होता है आपका कंप्यूटर, उसके साथ कनेक्टेड होती है. Information security design and implement in the 3-layer policies, people, education, training in awareness program and technology. Spheres of uses, इसमें सबसे पहले इंफॉर्मेशन, फिर इसके सिस्टम, नेटवर्क, इंटरनेट और पीपल आ जाते हैं. फिर ये देखिए कि आपस में कनेक्ट कैसे हैं. अगर हम इनको, फिर इन्होंने 2 हिस्सों में कनेक्ट किया हुआ है, किसके साथ, पीपल्स को टेक्नोलॉजी के साथ. अब ये आपस में इंटर रिलेटेड है सारे. ये देखिए, अगर हम पीपल्स की बात करें तो ये सिस्टम, नेटवर्क, इंटरनेट जो है बनाते हैं कौन है, लोग हैं. फिर ये पॉलिसीज इन लोग बनाते भी लोग हैं इन चीज़ों की, और वो अप्लाई भी, रूल्स बनाते हैं और वो अप्लाई भी खुद करने पड़ते. उसके बाद इंफॉर्मेशन तब होगी जब आप लोगों को ट्रेनिंग एंड एजुकेशन देंगे. एजुकेशन होगी और ट्रेनिंग देंगे, उस चीज़ की, उस प्रोडक्ट की अवेयरनेस होगी. जब तक आप लोगों के पास उस चीज़ की अवेयरनेस नहीं होगी ना, तब तक आप वो चीज़ नहीं कर पाओगे. ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाती है, अगर हम इस साइड इंफॉर्मेशन की साइड आ जाएं तो उसका एक्सेस कंट्रोल किसके साथ, इंफॉर्मेशन के साथ ही आप एक्सेस कंट्रोल कर पाओगे. किसका, सिस्टम का, नेटवर्क का, इंटरनेट का. जब आपके पास नॉलेज ही नहीं होगी, आपके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी, तो आप कैसे चलाओगे. एक मोबाइल फ़ोन है, अगर आपको आपके फंक्शंस, आपको उसके फंक्शंस पता है, आप तभी चला पाओगे ना. नहीं तो आप क्या करोगे, जिस चीज़ का आपको पता नहीं होता, आप तो आपसे पहले जो बंदा वो चीज़ चला रहा होता है या जिसको आ रही होती है, आप लोग उससे पूछ लेते हो. तो सिक्योरिटी सिस्टम में भी यही है कि अवेयरनेस और ट्रेनिंग होनी चाहिए. किसके लिए, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, ताकि जब उनको जो जितनी अच्छी तरीके से उनको नॉलेज होगी उस सॉफ्टवेयर की, उस प्रोडक्ट की, तभी वो आगे उस चीज़ को मेंटेन कर पाएंगे. उसके बाद उसमें ये सारी चीज़ें आ जाते हैं आपके बैकअप्स, इंक्रिप्शन, प्रॉक्सी सेवर, नेटवर्क आईडीज, फायरवॉल, होस्ट आईडीज, अपग्रेड, पैचेस एंड अपग्रेड, मॉनिटरिंग सिस्टम, ट्री, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं. ये टेक्नोलॉजी की साइड आती है. सिक्योरिटी एजुकेशन ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम. एजुकेशन ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस program responsibility to the
CEOs, CISOs, control measure designs to reduce their incidents and accidental security breaches by employees. ठीक है, अब अवेयरनेस देंगे, ट्रेनिंग देंगे, तभी वो सिक्योरिटी के जो है वो अपनी सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर से सिक्योरिटी सिस्टम आपका जो है ना इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। उनको अवेयरनेस नहीं होगी तो सॉफ्टवेयर आप लाके उनके साथ अपने एम्प्लॉयज़ के साथ रख दोगे तो फ़ायदा क्या, उनको चलाना तो नहीं आएगा ना। इसीलिए आपने वैसे भी देखा होगा, नॉर्मली भी कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर न्यू चीज़ अपनी कंपनी में ला रही होती है, इंस्टॉल कर रही होती है, इम्प्लीमेंट कर रही होती है, तो सबसे पहले वो अपने वर्कर्स को क्या उस चीज़ की अवेयरनेस देती है, अपने एम्प्लॉयज़ को अवेयरनेस देती है, ताकि वो जो न्यू चीज़ लाए हैं उसमें हमारे वर्कर्स काम कर पाएँ। क्योंकि हर न्यू चीज़ हमें पहली बार चलाने नहीं आती जब तक हम उसे सीखते नहीं हैं। Designed to supplement the general education and training program. The program elements security education provide opportunity inform the why securing training hand to hands on education and experience the how security awareness reinforce the what. The purpose of सीटा इज द इनहेंस सिक्योरिटी बाय। पर्पस ही क्या है सीटास का, ठीक है, उसमें क्या है कि आपका जो सिक्योरिटी सिस्टम है, सिक्योरिटी आपकी उसको बढ़ाया जाए। इम्प्रूविंग अवेयरनेस ऑफ द नीड प्रोटेक्ट सिस्टम रिसोर्स, आपको अपनी इम्प्रूव करनी है अवेयरनेस, क्या जो आपकी प्रोटेक्शन है, आप जो प्रोटेक्ट सिस्टम रिसोर्सेज हैं उसकी क्या ज़रूरत है। उसके बाद डेवलपिंग स्किल एंड नॉलेज सो कंप्यूटर यूजर कैन परफॉर्म देयर जॉब, ठीक है, मोर सिक्योरली। उसके बाद आपको क्या करना है, उनको क्या करना है, डेवलप करेंगे। आपके स्किल्स, कंप्यूटर स्किल्स आपके पास होंगे तभी आप ज़्यादा अच्छी तरीके से उस काम को अंजाम कर सकोगे, उस काम को परफॉर्म कर सकोगे। बिल्डिंग इन द डेप्थ knowledge is needed to design, implement or operate security program for organization and system. You install what, ठीक है, अब ये क्या है, ये malware जो है ये एक वायरस है। Don't open attachment or click link emails from unknown or untrusted senders. Never install view software in your malware prevent up to date, ठीक है। अब ये क्या है, सिक्योरिटी अवेयरनेस से। इवन अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ आपके एंड्रॉइड फ़ोन की, ये इसलिए मैं एंड्रॉइड फ़ोन की एग्जांपल्स दे रही हूँ आपको क्योंकि आप सब लोग इसके यूजर्स हो। कभी कभी क्या आपकी सेटिंग में ये ऑप्शन होता है, कुछ लोग उसको इनेबल कर देते हैं और कुछ लोग डिसेबल कर देते हैं। तो आप जब गूगल से कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे होते हो तो आपको आपकी मोबाइल फ़ोन से जो है ना डायल बॉक्स शो हो जाता है कि ये जो फाइल है, ये जो रिसोर्स है, ये रिसोर्स आप डाउनलोड कर रहे हो, इट्स हार्मफुल फॉर योर फोन। उसके बाद वो होता है कि फिर भी आप करना चाहते हो उसको डाउनलोड या नहीं, फिर आप यस या नो करते हो, उसके बाद वो फाइल आपके फ़ोन में आ सकता है। तो ये क्या है कि ये सिक्योरिटी सिस्टम है जो मोबाइल फ़ोन्स में या किसी भी चीज़ में सेट किया जाता है कि ये सॉफ्टवेयर आपको बता रहा होता है, आपको उसके बारे में अवेयर कर रहा होता है, लेकिन फिर आपका रिएक्शन क्या होता है ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये चीज़ें होती हैं। पासवर्ड, अब उसमें आप देखे होंगे, अगर आप कोई भी आईडी, चलें कोई भी छोड़िए, आप अगर जीमेल पे भी आईडी बनाते हो तो उसमें आप उसमें आपकी ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लेंथ डज नॉट मैटर, ठीक है, लेंथ कितनी भी लेकिन लिमिट होती है, मिनिमम लिमिट होती है, मैक्सिमम फॉर एग्जांपल मिनिमम 6 होती है, मैक्सिमम 18 कर देते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। सॉरी, उसमें क्या आ जाता है, क्रिएट सिक्योर मेमोरेबल पास प्रोसेस ऑफ 14 और मोर कैरेक्टर बाय ज्वाइनिंग अनरिलेटेड वर्ड्स विद द नंबर। अब उसमें क्या होता है, आपको बोल देते हैं अपर लोअर केस नंबर्स एंड सिंबल्स आप यूज करें, क्यों, ताकि आपका जो है पासवर्ड है जितना स्ट्रांग होगा उतना ही आपका डेटा सिक्योर रहेगा। अगर आप इतना सा छोटा सा पासवर्ड रख देते हो, या अपने मोस्टली लोग क्या करते हैं नाम का पासवर्ड रखते हैं, तो ये मना करते हैं कि अपने नाम का पासवर्ड कभी भी ना रखा करें। उसके बाद ये फिशिंग है, इसकी है पिक्चर दी गई है। अब ये क्या है, यूटीसी अवेयरनेस कुकीज़ है, कुकीज़ आ जाती हैं, ये भी एक किस्म के वायरसेस होती हैं। सिक्योरिटी अवेयरनेस एग्जांपल, शेयरिंग अ पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑन सोशल नेटवर्क साइट कैन मेक यू vulnerable to identify theft, targeted phishing attack and robbery,
ठीक है। अब जैसे कि आप कोई भी अपनी इंफॉर्मेशन पब्लिकली रखोगे तो उसको कॉपी होने की चांसेस है ना। जैसे मोस्टली अगर हम अब इंटरनेट की ही बात कर रहे हैं तो अगर आप पर्सनल स्टफ में आप गर्ल्स मोस्टली अवॉइड करती हैं कि हम अपनी प्रोफाइल पिक्चर पे पिक्स नहीं लगाएं। क्यों नहीं लगाएं? क्योंकि वहाँ पे चोरी होने की लोग क्या करते हैं, कॉपी करके अपनी डीपीज पे रख देते हैं और ऐसा होता है। तो ये भी क्या है, ये भी क्राइम है, किसी का आप पर्सनल डेटा लेके अपने यूज पे रख रहे हो। लेकिन पॉइंट इज दैट कि वो चीज हमने खुद पब्लिक की हुई होती है, तो जितनी आप चीज को आसान करोगे ना उतनी वो चोरी होना, थीफ होना उसमें के चांसेस बढ़ जाते हैं। जितना अपने डेटा को सिक्योर रखोगे उतनी ही आपका चोरी होने का खतरा कम होगा या क्राइम होने का खतरा कम होगा, साइबर क्राइम का खतरा, डेंजर कम होगा। Policies basis for all information security planning, design and development security team design a blueprint used to implement the security program. Implement a security education training and awareness program. ठीक है, ये इसकी समरी बता रहा है कि बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है, वो कैसे डिजाइन करनी चाहिए, टीम डेवलप करनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें। सप्लीमेंट ऑफ द जनरल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, वही बात कर रहा है कि आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाने ही अपने एम्प्लॉयज के लिए। फिर आ जाती है सिक्योरिटी कंसर्न। सिक्योरिटी कंसर्न जो है वो किस किस चीज के साथ है? ऑथेंटिकेशन, इंटीग्रिटी, नॉन रिपोर्टेशन एंड एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, मेक श्योर दैट द मैसेज सेंडर आर प्रिंसिपल आर हु दे से एंड दे आर। ठीक है, ऑथेंटिकेशन ये है कि आपको पता होना चाहिए, आप उसको कंफर्म कर लें कि जो सेंडर है या जो प्रिंसिपल है वो कौन है और क्या कह रहा है। Making sure that information is not accidentally and maliciously